Hey guys, welcome to the video. This is Ramit. Um, Today we are going to do a very simple system design of YouTube, right? So first of all, just wanted to say thanks to you guys for the last video. We achieved a total of around I think 500 views and around 25 likes. I think the happiest thing about me is that there is not even a single dislike on the video, and people really said that it helped them with system design. Really hope this video does too. Okay, so let's get started. Start by approaching this like we approach any other system design problem: getting requirements, building user journey, and then breaking down. We start with getting the requirements, right? So for YouTube also, app YouTube use Karto. It's a very common app, right? You use it every time. So try to think back, right? Just think back and think that when you're using YouTube, what are all the things that you do, right? If you cannot think back, you can open this video, like open up YouTube. You can ask the interviewer, can I please open up YouTube? He will definitely give you permission, right? And then you can open up YouTube and you can just see that what are all the things that you can do. So there are a lot of things. I've tried to list down some of them, right? The first thing that we do when we open YouTube is we can view this home page, right? Home page or the trending page we view. That is the first page that opens up, right? Then we can view videos. We can search for videos, right? We can like, dislike videos. We can comment or view comments. We can then we can view playlists. We can change the video quality, right? These are just some of the requirements. If you see YouTube is a very big app. There will be hundreds of requirements, but I've tried to list down. So in most cases, this is a very good tip that I'm going to give you. When you're getting something like YouTube, right, that has a lot of these requirements, the interviewer will tell you what are going to be the primary requirements. He will help you do that. Here I've just listed some of them down. Now we are going to go to the user journey, right, of basically like just the way I told you for Book My Show also. This is the user, this is a creator, right? And YouTube does a very simple thing: connect user to creator, just like Book My Show does connect to people, and just like any other app does, like 90% of do just this thing, connect to people, right? So here is YouTube. This is a very dumbed down system design, but you trying to understand, right, how YouTube works. There are few things that I want to tell you first, which are kind of mandatory if you want to do the system design for a streaming system, right? तो एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है? थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, like before YouTube या ये सब streaming, before the age of computers, right? Not before the age of, but before ये सब होता था. कैसे लोग कंटेंट देखते थे, ठीक है? ये जो क्रिएटर है, ये अपना कंटेंट बनाता था, ठीक है? इसके पास एक ऐसे डिस्क होता था, ठीक है? ये अपने हार्ड डिस्क में ये कंटेंट स्टोर कर लेता था, और फिर ये क्या करता था, एक किसी को बोलता था कि तू ये कंटेंट इसको भेज दे, ठीक है? ये जाके इसको दे देता था, ये चल के जाके इसको दे देता था, ठीक है? अब क्या हो गया, फिर ये नेटफ्लिक्स ने तो रिप्लेस कर दिया. अब तो ऐसे तो होता ही नहीं है, नेटफ्लिक्स यूट्यूब सब ने रिप्लेस कर दिया. अब आ गया एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं क्लाउड. तो ये जो क्लाउड है ना, ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, ठीक है? सबको, मुझे भी ऐसा लगता था कि आसमान में कैसे लाइक चीज़ें स्टोर हो जाती है, वो हो जाता है, लाइक ऐसा क्लाउड कुछ नहीं होता यार. देखो, क्लाउड जो चीज़ है ना, इट्स बेसिकली समथिंग that there are this, ये जो आपका like in your device, right, in your home there is something called a CPU, hard disk है, ठीक है? आपका hard disk है, right? अब when you go to buy a hard disk, आप देखोगे कि आपका 1 TB का कुछ प्राइस है, 2 TB का होता है, 20 TB का होता है. जितना बड़ा आप खरीदोगे it gets cheaper, right? So some people thought कि ये क्लाउड क्या होता है. बेसिकली क्लाउड ये होता है कि आप कोई एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे लैंड बहुत सस्ता है, उन्होंने गूगल ने खरीद लिया वो लैंड, ठीक है? उसके ऊपर यहाँ पे बड़ा बड़ा ऐसा हार्ड डिस्क का रैक लग दिया.
ये 20 TB का हार्ड डिस्क है, ऐसे 10,000 हार्ड डिस्क रख दी, ठीक है। अमेजोन AWS का एक है मुंबई में ऐसा, ठीक है। AWS का बॉम्बे में है, एक लंदन में है, काफ़ी जगह पे 100-200 इनके। तो ऐसा एक जगह हो गया। दिस इज बेसिकली लाइक अ कंप्यूटर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरेज, ठीक है। इसी को क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड का मतलब ये है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब यहाँ पे आप डेटा को स्टोर करोगे और आप एक्सेस कर सकते हो। बट नाउ द थिंग इज, जहाँ पे क्लाउड आता है, whenever you are talking about things like live streaming, right? जैसे मैंने ये इशू बोला था, ये क्रिएटर है, ठीक है। इसने इसको बोला कि तू ये पैकेट, ये जो DVD बनाया है इसने कंटेंट, इसको दे के आ। तो ये कैसे जाता है? चल के जाता है, ठीक है। चल के जाता है, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। क्लाउड में भी सेम ही है, ठीक है। अभी when you are calling someone right from your phone, how does that data, जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है? इट ट्रांसफर्स थ्रू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स काफ़ी फास्ट ट्रैवल करती है, राइट। आई थिंक 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, बट फिर भी वो ट्रैवल करता है। इट टेक्स टाइम फॉर इट टू ट्रैवल, राइट। तो अगर ये मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है, मुंबई में लोकेटेड है ये AWS का सर्वर, यहाँ पे इसने ये कंटेंट डाल के रखा है। अब मैं लंदन में मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डेटा पास होगा, ठीक है, ये बाई एयर जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है 300 किलोमीटर, बट दिस इज स्टिल काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको। एक मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया, दैट इज़ अ डिले, राइट। आप डाउनलोड कर रहे हो तो यू डोंट माइंड दिस, बट व्हेन यू आर लाइव स्ट्रीमिंग सेकेंड्स मैटर, ठीक है, सेकेंड्स मैटर। तो ये तो इशू हो गया। अगर यहाँ पे एक बंदा देख रहा है तो ठीक है, आई एम कूल कि ये एक बंदा गुस्सा हो गया, ठीक है, वो डाउनलोड करके देख लेगा या नहीं देखेगा, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। अगर यहाँ पे इंडिया में बैठ के कोई बंदा ऐसा कंटेंट बना रहा है जो लंदन के 10,000 लोग देखेंगे, ठीक है, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर इन लंदन, इंडिया में बैठ के बना रहा है, देन यू कैन नॉट हैव दिस कंटेंट इन लंदन, आपको तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी उसके व्यूअर्स हो सकते हैं। तो व्हाट दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं CDN, and this is very important when you are doing the system design of something जो लाइव स्ट्रीमिंग है। एनी लाइव स्ट्रीमिंग आप पकड़ लो, नेटफ्लिक्स हो जाए, हॉटस्टार हो जाए, CDN इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी के ऊपर निर्भर करता है कि कितना अच्छा सर्विस है, कितना घटिया सर्विस है, राइट। CDN क्या बोलता है कि यहाँ पे तो मेरा सेंट्रल सर्वर है, सारा डेटा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक छोटा सा ऐसा सर्वर हम ले लेंगे, ठीक है। ये भी शायद ऐसे ही कोई बड़ा सर्वर फर्म का छोटा सा सर्वर है, ठीक है, छोटा सा हार्ड डिस्क ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे 1000 लोगों ने आज डिमांड किया इसको, तो मैं एज्यूम कर लूँगा कल 10,000 लोग मांगेंगे यही कंटेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक कॉपी लेके यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। जैसे ही दिस इज यूट्यूब सर्वर, सोच लो यूट्यूब का जो CDN है, ठीक है। तो जब भी लंदन का कोई बंदा आके कुछ मांगेगा, राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे हिट होगा। ये आप कैश की तरह मान लो, कैश मतलब आप समझ लो कि क्या बोलते हैं, लाइक ये बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, यहाँ पे इसका कंटेंट है, इसको यहाँ पे आके उन्होंने रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हिट करेगा, ठीक है, यहाँ पे मिल गया तो 1 सेकंड में चला आया, फटाक से चला आया कंटेंट, ठीक है। अगर नहीं मिला तो यहाँ से यहाँ पे डालेगा, फिर ये लेके आएगा, ठीक है, तो वो तो डिले हो जाएगा। बट जैसे जैसे मतलब इसी तरीके से ये इंश्योर करता है कि कभी तकलीफ हुआ तो भी एक बंदे को तकलीफ हुआ, ठीक है, जो शायद कहीं दूर किसी देश से कंटेंट मांग रहा है। अगर बहुत लोग मांगने लग गए तो वो कंटेंट को ही उठा के अपने आसपास डाल देते, आसपास कोई सर्वर फंड में। तो ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली CDN है, यूट्यूब में काम आएगा, बट दिस इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, तो मैंने समझाया है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड देन विल गो टू द यूजर जर्नी, क्योंकि यूजर जर्नी में CDN इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। So now that you understand CDN, let's go to the user journey. So
सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड CDN, बट मैं फिर भी एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँगा. CDN इज बेसिकली आपका जहाँ पे भी यूज़र है, राइट, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, CDN इज ऑफन आउटसोर्स. पूरे वर्ल्ड में CDN ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस रखते हैं कंटेंट का, ठीक है. यहाँ पे शायद 2-3 यूज़र हो गए, ऐसे छोटा सा बॉक्स हो गया, 2-3 यूज़र हो गए, छोटा सा बॉक्स हो गया, 2-3 यूज़र हो गए, ऐसे पूरे वर्ल्ड में ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस रखते हैं. और यहाँ पे ये जो लोग हैं ये क्या डिमांड करते हैं उसके बेसिस पे इस बॉक्स में कंटेंट रहता है, ठीक है. एक्चुअल कंटेंट कहीं भी रह सकते हैं, यहाँ पे कॉपी रहता है, ठीक है. आप एक्चुअल कंटेंट शायद लंदन में हुआ, ये बंदा इंडिया से डिमांड कर रहा है, तो इंडिया में एक CDN है, वो क्या करेगा, पहला बंदा डिमांड किया, वो खींच लिया CDN, ठीक है, इसको दे दिया, ठीक है. अब कंटेंट का एक एक्सपायरी टाइम है, ठीक है, अब ये रुकेगा, ठीक है. फिर से एक बंदे ने डिमांड किया, फिर से दे दिया, फिर से डिमांड किया, फिर से दे दिया. अब कोई नहीं डिमांड कर रहा, तो क्या हो गया, कोई नहीं डिमांड कर रहा, बैठा है, ठीक है, इसका टाइम एक्सपायर हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है. फिर से बंदा आके मांगेगा तो फिर से वो फेच करके लेके आएगा. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ CDN. इट इज समथिंग नोन एज अ कैश, ठीक है. कैश होता है कंटेंट का सीधा रीजन स्पेसिफिक, ठीक है. ये तो आप समझ गए. सिस्टम डिज़ाइन पे आते हैं, यूट्यूब का, ठीक है. यूज़र जर्नी स्ट्रेच करते हैं. यूज़र है, ठीक है, बहुत सीधा है. देखो यूज़र है, यूज़र ने क्या किया, यूट्यूब पे गए, ऐप हो गया, वेब हो गया, फ्रंट एंड है ये यूट्यूब का, ठीक है. यूट्यूब का फ्रंट एंड पे गए, उसको कंटेंट चाहिए, उसने यूट्यूब पे गया, ठीक है. यूट्यूब पे गया, यूट्यूब के बैक एंड पे गया, ठीक है. बैक एंड पे गया, बोला कि मुझे होम पेज दिखाओ, होम पेज लेके आ गया, ठीक है. होम पेज देख लिया, उसने बोला कि मुझे वीडियो दिखाओ, ठीक है. वीडियो का एक आईडी होता है शायद, ठीक है. आईडी भेज दिया कि बंदे को ये वीडियो देखना है. यूट्यूब ने अब असली गेम्स शुरू होगा, ठीक है. वीडियो कहाँ पे है, क्योंकि देखो यहाँ तक तो इजी है, ठीक है. कंटेंट देखना है, वो देखना है. अब आईडी भेज दिया यूट्यूब को, यूट्यूब देखेगा वीडियो कहाँ पे रखा है मैंने. लंदन का वीडियो है शायद, तो लंदन के सर्वर में होगा. लाइब्रेरी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है. पूरा वर्ल्ड का लाइब्रेरी है. तो इसमें देखा कि मेरा वीडियो तो लंदन में है, ये बंदा तो इंडिया से मांग रहा है, ठीक है. नाउ व्हाट इज यूट्यूब गोइंग टू डू, यूट्यूब क्या करेगा, ये लंदन का वीडियो है, बंदा इंडिया से मांग रहा है. यूट्यूब का CDNs होगा, ठीक है. अपना भी नहीं हो सकता, दूसरे कंपनी का भी हो सकता है. यूट्यूब का CDN होगा, इसके यूट्यूब देखेगा कि इसके आसपास का कौन सा CDN है. कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस यही करेगा, जब भी वीडियो मांगता है. वीडियो कैन बी एट एनी लोकेशन वर्ल्ड वाइड. नेटफ्लिक्स का कंटेंट आपका इंडिया में हो सकता है, US में हो सकता है. डेफिनेटली अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स देखोगे, वो लोग US में रखेंगे, क्योंकि उनका मेजर ट्रैफिक US में है. तो वो क्यों इंडिया का, मतलब इंडिया में रख के हर बार वो US के CDN में लोड करेंगे, इधर लोड करेंगे, राइट. वो US में रखेंगे. सीक्रेट गेम्स देखोगे, वो इंडिया में रखेंगे, क्योंकि मेजोरिटी व्यूअर्स इंडिया में है, तो वो क्यों दूसरी जगह पे रखेंगे. तो इसका शायद मेजोरिटी व्यूअर्स लंदन में होगा, इसलिए ये लंदन में रखा है उन्होंने, ठीक है. उनका डिसीजन है. बट इंडिया ने मांगा तो इसको वो लोग लेके आ गए लंदन से इंडिया, ठीक है. इसका एक कॉपी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है. बंदे को मिल गया. इसके दोस्त ने मांगा, उसको भी ऐसे मिल गया. थोड़ी देर रहा, ठीक है, इसने देख लिया, हो गया. अगले दिन ये डिलीट हो गया, ठीक है. फिर से मांगेगा, फिर से लंदन से आएगा. तो इसीलिए आपका इनिशियल बफरिंग होता है कभी कभी, ठीक है. कभी कभी कंटेंट इतना दूर होता है, इतना लेस इन डिमांड होता है कि यूट्यूब डिसाइड करता है कि मैं इसे CDN में रखूँ ही ना, इसको सीधा इस कंटेंट को दूँ, क्योंकि मैं क्यों कैश वेस्ट करूँ, राइट. शायद कैश फुल भी है, तो इसीलिए आपको बफर करता है वीडियो, ठीक है. बट ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. हर सिस्टम डिजाइन का ऐप यही होगा, यूट्यूब भी यही करता है, नेटफ्लिक्स भी यही करता है, कोई भी स्ट्रीमिंग पकड़ लो यही चीज़ करता है. इसमें अच्छा और ख़राब क्या होता है, किसका CDN अच्छा है वो ऐप अच्छा है, किसका CDN बुरा है वो ऐप बुरा है. जियो सिनेमा का देख लो, घटिया CDN है, कुछ नहीं चलता उसका, ठीक है. यूट्यूब का देख लो, इतना अच्छा है. नेटफ्लिक्स का तो सबसे अच्छा है, राइट. और ये CDN एक और कारण है, एक और रीज़न है. आप देखोगे कि देयर आर एप्स, राइट. तो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है, नेटफ्लिक्स है, हुलू है,
ठीक है, वो तो कहीं पे भी चल सकता है, राइट। स्ट्रीमिंग कंटेंट है वो तो हुलू, तो इंडिया हुलू क्यों नहीं है इंडिया में, ठीक है। वो जो कुछ कुछ ऐप्स है जो इंडिया में नहीं है बट यूएस में है, दूसरे कंट्रीज़ में है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोई भी जियोग्राफी में जाते हो, नेटफ्लिक्स ने भी तो इतना टाइम लगाया इंडिया में आने में। रीज़न सिंपल है, कोई भी जियोग्राफी में जाते हो ये एक ही चीज़ आपको चाहिए बस, ये सीडीएन हो जाए, ठीक है। आप कंटेंट कहीं भी रखो, अब लंदन में रखो, यूएस में रखो, कहीं भी रखो, सीडीएन आपको चाहिए, ठीक है। सीडीएन आपको चाहिए। इंडिया में आपको लोगों को अपना कंटेंट देना है तो सीडीएन चाहिए, नहीं तो डिले बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ जाओ, बहुत ईजी साइड है ये, ठीक है। यूज़र है, ऐप है, यूट्यूब है। दूसरे साइड पे आ जाते हैं, कंटेंट क्रिएटर है। कंटेंट क्रिएटर ने अपलोड किया, ठीक है, कंटेंट अपलोड किया, यूट्यूब उसको क्या करता है, यूट्यूब क्या करता है, आप कंटेंट अपलोड करते हो, आपको पूछता है कि आप टैग्स डालो वीडियो में, ठीक है, ताकि लोग रीच कर सके। कंटेंट को यूट्यूब एनालाइज कर लेता है अपने तरीके से, देखता है कि कंटेंट कॉपी कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है, सब कुछ देखता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, फिर वो देखता है कि ये कंटेंट यूज़र कहाँ से कंज्यूम करेगा, राइट। तो यूट्यूब के काफ़ी सर्वर्स है, लंदन में है, इंडिया में है। मैं इंडिया में डालूंगा, मेरा हिंदी वीडियो है, यूट्यूब देखेगा कि ये तो इंडियन ऑडियंस ही कंज्यूम करेगी, वो इंडिया के एक सर्वर में उठा के फेंक देगा इसको, ठीक है। ये हो गया आपका स्टोरेज, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। गूगल ड्राइव वगैरह सबका स्टोरेज तो सबसे बेसिक होता है, तो स्टोर कर दिया इसको। अब यूट्यूब इसको सिर्फ स्टोर करता है, ठीक है, बट आपको ये भी देखना है कि थोड़ा सा रीड हैवी सिस्टम है ये, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग पढ़ते हैं, तो इसको मतलब अभी आपको इतना डीप जाने का ज़रूरत नहीं है, बट सीख के रखो। जो रीड हैवी सिस्टम्स होता है वो S3 में स्टोर करता है, अमेजन S3, ये आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लोगे, ठीक है। S3 में स्टोर करता है, क्योंकि जो रीड हैवी सिस्टम होता है उसमें यूज़ होता है, एज अपोज टू लाइक यहाँ से आप रीड बहुत इजीली कर सकते हो, राइट थोड़ा सा वन टाइम राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया इसने, ठीक है, कंटेंट को थोड़ा सा उसने उसका अपना कंप्रेशन एल्गोरिथम्स लगाएगा वो, ठीक है, कंप्रेशन करके S3 में डाल दिया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फिगर आउट करता है यूट्यूब, ये जो कंटेंट है ये मतलब आप खुद ही सोचो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ भी लेना कि हर स्ट्रीमिंग सर्विस का एक ही सेट होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है, और सोचना है कि ये वीडियो स्टोर कर लिया, ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। आप कोई भी, आप शार्क टैंक देखते हो, कोई भी प्रोडक्ट आता है, ठीक है, सबसे पहले आप प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे देखते हो, आप वो प्रोडक्ट को थोड़ा सा टेस्टिंग करते हो, दो तीन लोग हैं, उनको आपने चखाया प्रोडक्ट, इसने तो बोला मस्त प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, तीनों में से दोनों ने अच्छा बोला, एक बंदे ने अच्छा मतलब एक ने न्यूट्रल बोला, तो आपको अच्छा पॉइंट मिल गया। अब आप इसको 10 लोगों को दो, ठीक है, 10 लोगों को दोगे, अब देखा 4 लोगों ने अच्छा बोला, तो आप और लोगों को देते जाओ, ठीक है, ऐसा ही है। तो YouTube के लिए आपका हर वीडियो इज़ अ प्रोडक्ट, और उसके लिए वो प्रोडक्ट मार्केट फिट ऐसे टेस्ट करता है, ठीक है। 2 लोगों को दिया, फिर 10 लोगों को दिया, फिर और अच्छा लगा तो और लोगों को दिया, और अच्छा नहीं लगा तो उसने गिरा दिया प्रोडक्ट, यहीं पे सट जाएगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसा ये होता है, आपका सेकेंड स्टेज हो गया, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू कैन स्टिल इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि एल्गोरिथम क्या है। देखो, द थिंग इज आई हैव मेंशन्ड वन एल्गोरिथम हियर, और ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मेरे दिमाग से आया है बेस्ड ऑन हाउ मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। काफ़ी तरीके के एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, किसी को नहीं पता कि यूट्यूब इंटरनली क्या एल्गोरिथम यूज़ करता है, राइट। वो आप देखो कि मिस्टर बीस्ट वीडियो डालता है तो ऐसे वो बहुत स्पीड से व्यू हो जाता है, ठीक है। सब्सक्राइबर का भी यूट्यूब का कोई लॉजिक है, बट फिर देखोगे कुछ लोग हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ, उनके पास भी कोई व्यू नहीं। तो आप व्हेन यू आर सिटिंग एट एन इंटरव्यू, राइट, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यूअर आपको ये सवाल पूछ रहा है, इंटरव्यूअर विल आस्क यू, मैंने यूट्यूब या कोई भी स्ट्रीमिंग सिस्टम का ये एल्गोरिथम आपको पूछेगा, तो यू कैन मेक योर ओन एल्गोरिथम। आपको अगर इंचार्ज बनाया जाए, आप कौन सा लॉजिक यूज़ करोगे, उसके बेसिस पे यू कैन मेक एन एल्गोरिथम,
और वो एल्गोरिथम बना के आप ऐसे ही कुछ दिखा दो, ठीक है, इंटरव्यू पसंद नहीं आएगा, वो अपना सजेशंस देगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आप एल्गोरिथम बना दोगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ होता नहीं है यूट्यूब के सिस्टम डिज़ाइन में, आपको ज़्यादा API लेवल पे पूछेगा नहीं, या एल्गोरिथम इज़ अ मेन थिंग व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए हैं इस पर, तो मुझे पता है कि ये एल्गोरिथम इज़ अ मेन थिंग। यहाँ तक तो आपका हो गया। अब इसका आप अगर API लेवल में बिल्ड करोगे, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। यूट्यूब का डिज़ाइन है, ठीक है। मैंने फिर बेसिक यूज़र जर्नी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अभी देखो, मैंने 3 पार्ट्स आपको बोले थे हमेशा, रिक्वायरमेंट्स गैदर करो, रिक्वायरमेंट से यूज़र जर्नी बनाओ, और तीसरा हिस्सा है उसको आप थोड़ा सा छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो ताकि API बन जाए। अब व्हेन वी आर डूइंग यूट्यूब, राइट, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं यूट्यूब सिस्टम डिज़ाइन, काफ़ी बार आया है मुझे, जितना लाइक मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये CDN का कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें लाइक आपने कर दिया, 90% आपका यूट्यूब या कोई भी नेटफ्लिक्स का सिस्टम डिज़ाइन भी ये दोनों पे बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक आएंगे नहीं, मोस्ट इंटरव्यूज वोंट कम हियर। अगर आ जाते उसके लिए मैं थोड़ा सा बना दूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू लाइक द फुल थिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका ये जो सिस्टम को आप उतना अच्छे से तोड़ नहीं पाओगे, बस यूट्यूब इज़ नॉट द काइंड ऑफ सिस्टम दैट यू नो बहुत इजीली आप माइक्रो सर्विस में ब्रेक डाउन करोगे, ब्रेक डाउन करने जाओगे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। फिर भी मैं तोड़ूंगा। तो देखो, इस लेवल पे कुछ APIs बनते हैं क्रिएटर लेवल पे, ठीक है। क्या ही बनेंगे APIs, आपका होता है अपलोड करने का, ठीक है, अपलोड करने का बन जाता है, एडिट करने का बन जाता है, बेसिक रेड लेवल का APIs होता है, ऐड टैग्स हो जाता है, ठीक है। ये स्टोरेज बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यू विल बी आस्क्ड फॉर कंपैरिजंस। S3 ही बोलना हमेशा इंटरव्यू में, ऑलवेज से S3। S3 इज़ अ सिस्टम जहाँ से आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, रीड हैवी सिस्टम होता है, ठीक है। राइट्स ज़्यादा नहीं होते, रीड हैवी के लिए हमेशा S3 बोलना। और क्या ही होगा, यूट्यूब का बैकएंड है, बैकएंड में क्या हो सकता है, आप व्यू वीडियोस, ठीक है, सॉरी नॉट वीडियोस, व्यू आपका व्यू होम पेज, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको इंटरव्यूअर पूछेगा, आपको थोड़ा सा सोचना है, वो पूछेगा होम पेज कैसे बनता है, आपको ये सोचना है कि यूज़र का जो हिस्ट्री होता है वो लेता है, ठीक है। उसके बेसिस पे उसके किस का सब्सक्राइब है, किसका वीडियो देखा है, ये यूट्यूब अपने एल्गोरिथम में फीड करेगा, फिर ये होम पेज निकाल देगा, ठीक है। ये आपको आप मतलब खुद से ही सोच सकते हो, राइट। यूज़र का क्या क्या डेटा होगा यूट्यूब के पास, उसी के बेसिस पे वो उसको दिखाता है, ठीक है। ट्रेंडिंग क्या है वो सब दिखाता है, ठीक है। तो यूज़र का भी है कि ये देख सकते हैं, व्यूज़ बन जाते हैं बैकएंड का, ठीक है। और मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं यूट्यूब का, दिस पोर्शन इज़ ऑलमोस्ट कभी पूछते भी नहीं है इंटरव्यूज़ में बैकएंड में। फिर भी आप होम पेज देखोगे, आप वीडियोस को वो इंडेक्स करके रखते हैं, आप व्यू वीडियो पे क्लिक करोगे तो मतलब व्यू उसमें जो भी होता है, राइट, ये जो कुछ भी है वो हुआ, ठीक है। एंड देन इसका अगर आपको क्या बोलते हैं, लाइक ये तो ऐप से आप देख सकते हो, राइट। तो इतना ही है, मतलब इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो इतना ही करना है आपको। यूट्यूब का डेटाबेस लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं चीज़ें, वीडियो लेवल पे तो काफ़ी सीधा होता है, आप आईडी के बेसिस पे इंडेक्स कर देते हो। बट मैं चाहूँगा कि आप जो थर्ड चीज़ है जो मैंने अभी बताया, इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा ये CDN पूछेगा, ये पूछेगा, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। देर इज़ अ वेरी गुड चांस इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा इंटरव्यू, तो मैं भी नहीं जाता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ गुड, इतना ही आपको करना है, ठीक है, आपका हो जाएगा। ये CDN थोड़ा सा अच्छे से समझना, कोई भी सिस्टम डिज़ाइन में काम आएगा। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट।
Hey guys, वीडियो तो ख़त्म हो गया. थोड़ा सा लाइक इन कंक्लूशन व्हाट आई विल से इज़ ये थोड़ा सा दिस फील्स अ लिटिल more complicated than the other videos and that is completely okay. YouTube is कोई भी आप स्ट्रीमिंग देख लोगे ना, Netflix, YouTube, these are very complicated system designs, right? And these in an interview it takes a lot of time. You are not expected to do even 50% or 60% भी आप कर ले तो आपका हो जाता है इंटरव्यू, ठीक है. अनलाइक मोर सिंपलर यूजुअली इतना टफ होता है ये सिस्टम डिज़ाइंस की अभी आजकल इंटरव्यूज़ में पूछते भी नहीं है. लाइक इफ़ यूर आस्क थिंग्स लाइक यूट्यूब, वो मेजरली CDN वीडियन ही पूछेंगे. तो हैव लाइक थोड़ा सा और स्टडी भी कर लेना ऑनलाइन, और भी वीडियोज़ है वो भी थोड़ा सा देख लेना. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट एज सिंपल एज पॉसिबल. और या आई थिंक दिस इज़ ग्रेट, राइट. तो इससे आपका बेसिकली दो सिस्टम डिज़ाइन वीडियोस तो हो गए. बुक माई शो कर दिया, यूट्यूब कर दिया, एंड आई ट्राई टू अपलोड कंसिस्टेंटली. आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, राइट, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, और इफ़ यू जस्ट अगर इफ़ देयर आर एनी इम्प्रूवमेंट सजेशंस आप लोग इस वीडियो के लिए बनाना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट आउट, राइट, कमेंट करो और रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प यू गाइस. आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता हो. एज अ फ्रेशर मैंने देखा है कि लोग जाते हैं लाइक बड़े बड़े इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, दे डोंट स्टडी सिस्टम डिज़ाइन विच इज़ क्रेजी थिंग, राइट. आप कंपनीज लाइक सेल्सफोर्स, गूगल भी नहीं बोलूँगा, सेल्सफोर्स वगैरह में आप जाते हो, सिस्टम डिज़ाइन ना पढ़ के जाते हो. इट्स लाइक एन ऑकवर्ड इंटरव्यू. मेरे साथ ही हुआ था, मैंने सिस्टम डिज़ाइन नहीं पढ़ के गया था, राइट. एंड इट वाज लाइक कैसे बोल किसी तरीके से निकाल दिया. आई मीन उनका एक्सपेक्टेशन भी इतना कम होता है, बट अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, यू हैव अ वेरी ह्यूज एज ओवर ऑल द अदर पीपल जो आ रहे हैं, राइट. तो थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब मेरे से 2-3 वीडियोस मेरे देख लो, कंप्लीट देख लो. एक वीडियो आप कंप्लीट देख लो, बुक माई शो वाला, उसमें ही काफ़ी हो जाएगा आपका, ठीक है. और समझ नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली रीच आउट एंड कीप फॉलोइंग मी, लाइक सब्सक्राइब करके रखो अगर और देखना है तो, ठीक है. बाय.